Okay, so these two classes will be helping us. This will be used from your main program. Now I have saved this file with the name called as alphabet digit space demo.java file. Matlab kya? In this name I will be writing a main function. So this is the name of my file, which is saved with java extension .java extension, and there is a main function, and that main function will be containing my logic. Okay, so my whole logic will be written into this one. Is it clear to everybody? अब ये सब logic मेरे इसके अंदर है. Okay, are you getting? ये सब लॉजिक मेरा ये तीन ही क्लास रहेंगे. क्लास 1 that will be 2 classes, that will be the exception classes, and third class that will be the demo classes, that will be containing the main function. Okay, now here what I will do is that first I will create an variable that will be having a character type. Buffer reader हमने बना दिया पिछले वाले एग्जांपल के हिसाब से, and I will be writing a code that will be accepting continuously, that will be accepting some characters. Okay, so system.out.println enter character. जब भी character डालेगा it is in the character format. So br.read से हम उसको read करेंगे and उसको convert करना है, because this is in the format of integer. I need to convert into ch. ch is nothing but your character, so typecasting is required. So now whatever you are entering into this, whatever character you are entering, that will be stored into ch. Now using the class like character class, I will be checking whether it is digit. If it is digit, then I will be throwing an exception, that digit space exception, that is entered character is digit. Are you getting? So this function will be checking whether the character entered is digit or what. So what is digit? Digit means what? If I have entered 0 or 1, 2, 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or any number, so that will be considered as digit. So अगर इसको मिल गया, कोई भी digit मिल गया, तो it will be returning true. So if I have entered 0, it will be returning true. It will be throwing an exception called as a digit space exception, and I will be showing a message called as this one, that is exception a, that is exception. What is? You have entered character a, the entered character is digit. Are you getting this one line? Yes or no? Yes sir. Okay, सेम वे एल्स, अगर वो बंदे ने जो भी डाला है, अगर इट इज इन अपर केस, if it is in uppercase, I will be throwing an alphabetic exception. यानी अल्फाबेट के हमने अभी दो पार्ट किए, यानी वही कंस्ट्रक्टर वही क्लास को हम दो अलग अलग नाम से भेजेंगे एक्सेप्शंस. एक, अगर वो कैरेक्टर अपर केस होगा, दिस कैरेक्टर ch, if it is in upper case the value will be true. If it is true, it will be throwing an exception, but the message is somewhat different, that is entered character is in upper case. If this character, one second, if this character is found to be in lower case, then automatically it will be throwing the same exception. देखो नाम वही exception का है, but ये example हमने अलग क्यों लिया? Because the same name, but the message here is somewhat different. Here it is identifying the upper case, here it is identifying the lower case. So this function will be helping us to get the lower case character. The exception will be the same exception, that is alphabetic exception. So this part we have completed. Apart from this, अगर आप उसको space मिल गया, so again it will be throwing this exception, that is ये वाला. तो उसके लिए हम बोलेंगे else if it is space, so is space char, the function ध्यान में रखो character classes के, is digit is the to check whether it is digit, is uppercase to check whether the character is in uppercase, or is lowercase to check whether the character is in lowercase, and is space char मतलब क्या, आपने डाला हुआ character वो space है क्या. If it is there, it will be calling the same class, that is a digit space exception, and the exception will be entered character is space. Are you clear with this? Yes or no? Yes sir. Yes sir. और इसके बावजूद कोई बंदे ने कोई तो भी अलग ही चीज डाल दी, यानी कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, तो there should be an exception, that is entered. I will not call it an exception, I will call it an error. Okay, so this will be an error, that is entered character is स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि इसके बाहर वाला जो भी रहेगा दैट विल बी कंसिडर एज अ स्पेशल कैरेक्टर. और मैंने हर बार बताता हूँ कि जब भी हम कुछ लिखेंगे, वेन एवर यू आर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, इट शुड बी रिटर्न इनटू द ट्राई ब्लॉक, एंड जिसको जिसको हमने थ्रो किया है वो सभी एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना पड़ेगा. इसके वजह से हमने यहाँ पर 3 कैच लिखे. एक है अरिथमेटिक
सेकंड वन इज डिजिट स्पेस एंड थर्ड वन इज आईओ एक्सेप्शन. आईओ एक्सेप्शन क्यों लिखा हमने? अगर ये हमने नहीं लिखा देयर विल बी एन एरर. व्हाट इज देयर एरर? बिकॉज बफर रीडर विल बी थ्रोइंग एन एरर. ओके, एंड अगर आपने इसको थ्रोस यूज किया होगा तो यू कैन यूज द आईओ एक्सेप्शन कैन बी विजिबल हियर. दिस इज कैच्ड एक्सेप्शन, सो यू कैन हैंडल विथ थ्रो क्लॉज ऑल्सो, तो नो प्रॉब्लम. बट ये यहाँ पर मैंने कोड को सिंप्लीफाई किया कि ये दो एक्सेप्शन हमने लिखे थे, ये दोनों को हमने यहाँ पर कैच करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज क्लोजिंग ऑफ अ मेन एंड दिस इज क्लोजिंग ऑफ अ क्लास एंड जस्ट आई एम सेविंग द प्रोग्राम एंड रनिंग द प्रोग्राम. अब इस टाइम पे मैं स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूँ. ओके, so I will put some special character like this one. Okay, and I'm pressing enter. So it is an error. So entered character is special character. Are you getting? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. I think if you practice this one, this is more than enough. ये 5 एग्जाम्पल बहुत सारे हो चुके हैं. Now we'll move for the further examples के लिए जाएंगे. चलेगा? Yes. Yes. Shall we move further now? Yes, sir. Yes. नाउ अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. देखो दिस वीक यू आर वेरी मच, बहुत सारा काम है. आप बोलेंगे सर ये लास्ट में कहाँ पर लेके जा रहे हैं. नाउ फ्रॉम 72 ऑनवर्ड्स, यहाँ से लेकर 84 तक ये सभी असाइनमेंट्स आपको खत्म करने हैं इन दिस वीक. 72 ऑनवर्ड्स, 72 ऑनवर्ड्स आपको प्रोग्राम को खत्म करना है. कहाँ तक? 72 to 84. These questions you have to complete it. Okay, so in today's session I will be executing 2 programs. अभी 2 दें 4-5 जितना हो सके. Now these are correlated to 82 and 84. ये एक ही प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं. So first program is write a program to accept string from the user and reverse the string using string buffer class method. Okay, क्या करना है आपको? सबको समझ में आया? दैट इज वी विल बी एक्सेप्टिंग, वन सेकेंड, आई विल बी एक्सेप्टिंग सम नेम. वो बोलेंगे एंटर सम नेम या फिर एंटर सम स्ट्रिंग. ओके, सो यू आर एंटरिंग अ स्ट्रिंग, यू विल बी एंटरिंग एनीथिंग. सपोज आई एम सेइंग IBMRD. ओके, देन योर लॉजिक विल बी व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी कन्वर्टिंग इन रिवर्स को उसको बताएगा DRMBI. So output should be like this one. Are you getting? मैं कुछ भी डालूंगा उसका मुझे आउटपुट उल्टा दिखना चाहिए. Okay, this is assignment number what? This is assignment number what? 82 number. 82 number. Okay, 82 नंबर के असाइनमेंट के अंदर हम ये करेंगे. एंड नेक्स्ट असाइनमेंट इज वेरी सिंपल, इट इज ऑन द सेम पैरामीटर. उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे हम. 84 हमें चेक करना है पैलिंड्रोम. एंड पैलिंड्रोम मतलब क्या कि आपने जो भी डाला, सपोज आई एम ये एंटरिंग मलयालम एंड व्हेन आई मेक इट रिवर्स ऑफ इट, इट विल बी MALA Y Malayalam ना, MALAYALAM. Okay, so if I see this, if I make it this first one, this is the last one. Okay, देखो this first one it is same as last one. ये दोनों अगर same होंगे, if this is same, exactly same, this means the string, जो string हमने यहाँ पर उन्होंने accept करने के लिए बोली थी, हमने अगर वहाँ पर उनको बोल दिया मलयालम, okay, and if the person has entered this character into this one, so I will be checking whether this is, और उसका रिवर्स करने के बाद ये दोनों अगर सेम होगा तो I will be telling at this palindrome. Okay, I will be telling that this is palindrome. And if it is not there, if it is not there, I will be saying that जैसे हमने कुछ डाल दिया suppose IBMRD और it is exactly equal to नहीं, ये नहीं है, because अगर उसका उल्टा किया तो it will be DRMBI, ऐसा है. ये दोनों सेम नहीं हो सकते. DRMBI ये उल्टा है. It means this is not equal, this is not equal, so that's why the output will be not palindrome. Are you getting? Yes or not? Yes sir. Okay, you can work with number also. आप number के साथ भी workout कर सकते हैं, no issue about that. So the program will start writing a code, and here we'll be doing the first 82 number and then we'll be continuing with the 84 number line. Okay, so
just moving for the another assignment. So I'm making one more package over here, file start से बता रहा हूँ, new, and I'm making one new project into this. ये मेरे आपके लिए ध्यान में आने के लिए. Okay, so I'm creating the from first. It will be string assignments. These are a lot many assignments, 10-11 assignments है. So ये हम string assignments में लिखेंगे इसको. Okay, so string assignments and finish, that's it. Okay, so the string assignment folder is created. I'm saying right click. अब ये जितने भी programs से हमने बनाए हुए सबको मैं close कर देता हूँ, and you practice within half an hour. I will be completing 2-3 assignments at least. Okay, now this one, right click, new, and I will say class. Okay, so we'll give it this as program as what we call as reverse ना, इसको हम बोलेंगे reverse. Okay, so it is 82 number assignment, and that is nothing but your reversing a string using buffer. Okay, so I will call this program as reverse string demo. Okay, reverse string demo, and I want this main function into this one. Okay, अब मैं assignment को यहाँ पर copy कर देता हूँ. It is 82 number. Okay, so I'm just copying over here and pasting the rear. Okay, so we'll be writing a program that will be accepting a string from the user and reverse the string. So now this program will start. So for accepting I will be using import. ये import हम simple use करते हैं, that is import java dot util package हम use scanner को use करेंगे इस this example में. So import java dot util dot star, because if it is string that it will be working very nicely. So util dot star ये package हम use करेंगे. First time it takes problem. Okay, now this package will be containing a scanner class, उसको हमें ज़रूरत है. Okay, उसको try catch की ज़रूरत नहीं. So one variable that is string and string I will call it as str, और उसको हम initialize करेंगे null को. एक variable हमें चाहिए, हमें scanner चाहिए for the purpose of accepting. So scanner sc is equal to new scanner, और इसका definition ऐसा होता है, it is always system dot in. Okay, so this object is ready for accepting. Now we will be writing something comments. हमेशा programming में comments लिखना भूलना नहीं. So accept string from the user. Okay, और accept string उसके लिए हमें क्या करने का, उसको यूज़र को बताना पड़ेगा कि please enter the string. Okay, so we will be writing enter string for reverse operation. Okay, so यही हमें operation करना है. Are you clear with this one? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, now I will be accepting this using the scanner object. So sc dot, अगर मुझे string read करना है तो I will be using next. This is the function मैंने हमने क्लास में ऑलरेडी लिया है. So this function will be required. स्कैन करने के बाद उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा ये हमारे वेरिएबल के अंदर. द नेम ऑफ द वेरिएबल is str. ओके, सो आप जैसे एक्सेप्ट करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इनटू दिस वेरिएबल कॉल्ड एज एन str. नाउ str विल बी, नाउ अभी हमें इसको उल्टा करना है, रिवर्स करना है. तो इसको 2-3 फॉर्मेट से, ये एक एग्जांपल में लेता हूँ कि जहाँ पर हम एक रेडीमेड, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या बोलता है कि वी नीड टू यूज दिस स्ट्रिंग बफर क्लास. तो यही नाम को मैं कॉपी कर देता हूँ, एंड दिस स्ट्रिंग बफर दैट इज न्यू str, मैं ऐसा इसको ऑब्जेक्ट को नाम देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, एंड इसके अंदर आई विल बी पासिंग दिस ऑब्जेक्ट. मतलब क्या, ऑटोमेटिकली दिस विल बी कन्वर्टिंग the whole string, क्योंकि str एक string है, this string will be converted into string buffer, and henceforth it will be called as a new str. Okay, now I can do any operation with this one, just like this new str dot. अगर मैंने ऐसा बोल दिया, you will find the ready-made functions will be made available in for पे. उसके अंदर एक reverse नाम का function, देखो यहाँ पर you will find it, that is a reverse function. Are you getting this one? ये दिखाई दे रहा है सबको? Yes or no? Yes sir. Okay, so this is reverse function. तो ये reverse function से हम उसको रिवर्स करके दिखा सकते हैं. ओके, अब इसको दिखाना है हमें क्या करना है, अभी पहले जो स्ट्रिंग आपने ली उसको भी दिखाएंगे, और उसके बाद नई वाली स्ट्रिंग उसको भी दिखाएंगे. सो हियर व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल से system.out.println
हम इसको बोलेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग, और उसको हम बताएंगे प्लस str, ओके। और we will be doing operations, and based on that we will be displaying the reverse string. So okay, so plus, और यहाँ पर हम ये पूरे फंक्शन को कट करेंगे और इसके अंदर ही डाल देंगे, नो प्रॉब्लम, ये कॉलम की जरूरत नहीं। सो ये अल्टरमेटिक कैलकुलेट करेगा और इसको हम रिवर्स करके यहाँ पर दिखाएंगे। सो शैल वी रन दिस प्रोग्राम नाउ? Yes, sir. Saving the file and running the file. Now say I am entering Malayalam, MALAYALAM, उसका उल्टा भी मलयालम ही आ रहा है, ओके। रन इट, any other string like any number, suppose I am saying it in IBMRD, and it will be reverse, okay. This is original string and this is the reverse string. Are you clear with this? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now on same parameter we'll do some palindrome also. इसके अंदर ही हम नया प्रोग्राम निकालेंगे, राइट क्लिक, न्यू एंड देन क्लास, एंड इसी को हम बोलेंगे स्ट्रिंग रिवर्स। अभी इसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, PALINDROM, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग डेमो। मेन फंक्शन चाहिए, इसको हम पेस्ट कर देंगे, ओके। सो आई विल जस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम मोर, ओके। अभी दिस इज 84 नंबर, ओके। इससे ही हम पैलिंड्रोम का प्रोग्राम को वर्कआउट करेंगे, ओके। अभी ये कोड जो मैंने लिखा है ना, मैं क्या करता हूँ, इसी को ही उठाता हूँ यहाँ से यहाँ तक और उसके अंदर में डाल देता हूँ, ओके। और यहाँ पर ऊपर एक पैकेज मेरा लेना रहेगा, बिकॉज स्कैनर आई हैव यूज्ड इट ना, तो ये उसके लिए यूज करने के लिए import java.util.star ये पैकेज हमें लेना पड़ेगा, ओके। यही ऑपरेशन है। नाउ सी व्हाट आर स्टेप्स। अब ये पहली स्ट्रिंग हमने ली है, and then we have added into this is the original string, okay, and now this is the reverse string। तो reverse string हम क्या करेंगे, अभी ये reverse उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, we'll call this function। अभी हम यहाँ पर बोलेंगे this is we'll call it as strng string rev reverse str, okay, is equal to, इसको हम डालेंगे and then just enter। now there is an error because reverse करने का, now this end न्यू str एक स्ट्रिंग बफर है, और स्ट्रिंग बफर को आप जब भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो देयर विल बी ए टाइप कास्टिंग का इशू आ जाएगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएंगे। सो यू कैन जस्ट यूज डॉट and use two string, okay। so when you convert this into string, automatically this string buffer will be converted into string and that will be passed over here। are you getting? और ये वेरिएबल को हम यहाँ पर दिखाएंगे। समझ में आया सबको? अगर मैंने ये पिछले वाले एग्जांपल में जैसे मैंने डायरेक्टली दिखाया था, तो ये हम डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहे थे, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ। बट जैसे हम इसको सेव करना सोचेंगे कि whenever we are trying to save this string buffer into a string, there will be an error। so to handle this error we will be using toString function that will be converting this string buffer into a string। are you getting? सबको समझ में आया? yes or no? Yes, sir. what about the remaining students? are you getting or not? परत एकदा सांगा सर. Yes, sir. ओके, मैं ही लाईन मी कळत डिलीट करतो। हां, मला वाटतं इथपर्यंत तुम्हाला समजलेलंच, लास्ट लाईन। इथपर्यंत आपला प्रोग्राम झालेला है, बरोबर है कि नहीं? ओके, इसको मैं रन करता हूँ अभी फिलहाल। वही प्रोग्राम, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, आई एम से एंटरिंग द स्ट्रिंग टू रिवर्स। सपोज आई एम एंटरिंग हेलो, HELLO, हेलो, उसको उल्टा होने का ओरिजिनल ये और उसका रिवर्स भी हमें मिल चुका है। ये हमारा काम तो खत्म हो चुका है। नाउ अभी हमें कर रहा है क्या है कि ये अभी पहले वाली स्ट्रिंग और दूसरी वाली स्ट्रिंग दोनों सेम है क्या? जैसे हमने यहाँ पे बोला कि अगर ये दोनों सेम होंगे तब हम उसको बोलेंगे दैट इज पैलिंड्रोम, एंड इफ इट इज नॉट सेम जस्ट लाइक दिस वन, सो विल कॉल इट एज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, आर यू गेटिंग? यस और नो? Yes, sir.
उल्टा होने के बाद भी सेम दिखाई दे रहा होगा तो उसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं, और उल्टा करने के बाद पहला और दूसरा अगर दूसरा एक दूसरे के जैसा नहीं दिख रहा होगा तो उसको हम नॉन पैलिंड्रोम बोलते हैं. नाउ व्हाट इज दैट? दिस इज स्ट्रिंग. एंड व्हाट इज दिस? एनवी न्यू स्ट्रिंग डॉट रिवर्स, ये एक फंक्शन है. दिस इज ऑब्जेक्ट, ध्यान में रखना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज स्ट्रिंग बफर. एंड व्हाट इज एसटीआर? स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, यानी ये एक अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है. अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये दोनों को एक जैसा ही बनाना पड़े, तब जाके हम कंपैरिजन कर सकते. तो दोनों को एक जैसा करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें इसको यूज करना पड़ेगा, ये फंक्शन को, और इसको यूज करके हम इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे. तो उसको एक नई हम वेरिएबल बनाएंगे. सो स्ट्रिंग हम उसको बोलेंगे REVSTR, यानी रिवर्स करने वाली स्ट्रिंग, ये हमें ऐसी चाहिए. अगर मैंने ऐसा लिख दिया आउटपुट में तो हमें दिखा रहा था पिछले वाले में, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए. बट देयर इज एन एरर. क्यों एरर है? बिकॉज न्यू स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग बफर, ये क्लास अलग है, और ये वाला इसके लिए, ये वेरिएबल के लिए दिस इज डिफरेंट क्लास. स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर दोनों एक जैसे कभी नहीं हो सकते. दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास. दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? यानी एक दूसरे को आप आसान कैसे कर सकते हैं वैल्यू? उसके लिए आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत है. टाइप कास्ट करने के लिए कोई भी स्ट्रिंग को, कोई भी बफर को या फिर स्ट्रिंग बिल्डर को कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में, तो हमें सिर्फ एक डॉट लगाना है उसके फंक्शन के आगे. ओके, और इस फंक्शन को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज अ टू स्ट्रिंग. सो टू स्ट्रिंग फंक्शन will be converting the whole concept, this string buffer, into a string. Okay, now this error is removed. Okay, now I can use this variable टू डिस्प्ले. ये पिछले वाला जैसा ही हमें आउटपुट दिखाई देगा, यानी पहले वाले प्रोग्राम में हमने डायरेक्टली दिखाया था, बट ये टेक्निक कैसा सिंपल था, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया, यहाँ पर स्ट्रिंग बफर को डिस्प्ले कर दिया रिवर्स करने के बाद. बट अभी हमें दोनों, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है क्लास, बिकॉज ये भी एक स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट है और ये भी एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो दोनों हमारे सामने है. तो जस्ट आई गो फॉर रनिंग दिस स्मॉल प्रोग्राम. इसको हम पहले एक बार चेक करेंगे कि ये सही तरीके से काम करते हैं. सो आई एम एंटरिंग वन नंबर 1 2 3 4 5. ओके, सो उल्टा होने के बाद इट विल बी 5 4 3 2 1. ओके, सो नो इशू अबाउट द रिवर्स. रिवर्स तो हो रहा है. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज दैट हमें उसको चेक करना है कि पहला और दूसरा स्ट्रिंग सेम है क्या. सो इफ str डॉट, बहुत सारे फंक्शन है, कंटेन्स इक्वल, ओके, इक्वल्स, तो मैं अभी इक्वल्स यूज करता हूं, देखेंगे अभी क्या इक्वल्स, और ये फंक्शन है REVSTR. ओके, REVSTR. ओके, अगर ये दोनों सेम होंगे, ओके, अगर ये दोनों सेम होंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पैलिंड्रोम. अगर नहीं होगा तो not a palindrome. Okay, not a palindrome. Are you getting yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Equals function से. Okay, so I just run it, और मैं अभी यहाँ पर डाल देता हूँ 1 2 3 3 2 1. उल्टा करने के बाद सेम है, यानी ये पैलिंड्रोम है. ओके, एंड व्हेन आई से 1 2 3 4 5, उल्टा होने के बाद इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम. आई कैन वर्क आउट विद टेक्स्ट ऑल्सो. अगर मैंने बोल दिया IBMRD एंड सी इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम. एंड व्हेन आई से मलयालम MALAYALAM, सो इट इज अ पैलिंड्रोम. अगर मैं किस सेंसिटिव करता हूं, मैंने यानी कि ऐसे लिखा MALAYALAM, इसका उल्टा नॉट अ पैलिंड्रोम. ध्यान में रखना है, इट इज केस सेंसिटिव. इट इज केस सेंसिटिव, यानी ये मलयालम और ये मलयालम सेम नहीं है, ऐसा ये इक्वल्स फंक्शन बता रहा है. आर यू गेटिंग? अब ये मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे जेनरिक आउटपुट चाहिए. सो आई कैन यूज इक्वल्स इग्नोर केस, ये वाला, और ये मैंने यूज कर दिया. आर यू गेटिंग? ओके, एंड नाउ इफ आई रन दिस वन,
एम बड़ा वाला, MALAYALAM, एम अपर केस में उसका उल्टा होने के बाद बी, ये वाला एम और ये वाला एम थोड़ा डिफरेंस होके भी हमें आउटपुट में पैलिंड्रोम दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट इज इग्नोरिंग द केस. आर यू गेटिंग? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, हम इसको और भी अलग तरीके से भी कर सकते हैं. आई एम पुटिंग कमेंट ओवर देयर. ओके, अभी अगर हमने ऐसा लिख दिया, इफ, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट है ना, इफ str इज एग्जैक्टली इक्वल टू revstr. ओके, तो करना क्या है, इसको बोलना है कि ये पैलिंड्रोम है, नहीं होगा तो बोलना है नहीं पैलिंड्रोम नहीं है. ओके, तो हम इसको भी रन करके देखेंगे. चलो, and we'll put it as 1 2 3 4 5, not a palindrome. Okay, I am running it. 5 3 2 1 1 2 3. देखो 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3, ये दोनों सेम होके भी हम क्या बोल रहे हैं, नॉट अ पैलिंड्रोम. सो डबल इक्वल टू विल नेवर हेल्प यू. डबल इक्वल टू कभी यूज नहीं करना, प्रोबेबली इन जावा प्रोग्रामिंग. यूज फंक्शंस. आर यू गेटिंग? यस और नो? इसी वजह से हमें ये रेडीमेड फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं, बिकॉज इट वी आर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट्स. ऑल आर गेटिंग और नॉट? सबको समझ में आया क्या नहीं आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी एक बम्पर ऑफर है आपके लिए, सबके लिए. आई हैव ऑलरेडी शेयर, बस फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ. यू ट्राई फॉर असाइनमेंट नंबर 72 ऑनवर्ड्स, नहीं 72 टू डायमेंशन नहीं 73 आई थिंक सो. ओके, ये वाला एक्सेप्ट, देखो, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड रिवर्स द स्ट्रिंग. नाउ यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना ऐसा नहीं बोला. मैंने क्या बोला है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखा दो, स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखा दो. एंड स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना होगा आपको, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग के सब फंक्शंस. ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग को हम रिवर्स करके ऑपरेट कर सकते हैं. कैन एनीवन नोज द आंसर फॉर दिस वन? कैसे कर सकते, कोई लॉजिक कोई लगा सकता है क्या, कि विदाउट यूजिंग एनी रेडीमेड फंक्शन अगर यही काम हमें करना है तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? ओनली दिस एग्जाम्पल आई विल बी डूइंग, एंड रिमेनिंग एग्जाम्पल आज और कल, परसों, सैटरडे, संडे, ये सभी दिन में आपको ये सभी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने. सो आई विल बी राइटिंग अ कोड फॉर यू. आई विल बी राइटिंग अ कोड फॉर दिस वन, कि आप लॉजिक को कौन से एक्सटेंट तक लेके जाना है आपको. सो वन मोर, राइट क्लिक एंड न्यू वन, न्यू एंड क्लास, एंड आई विल से रिवर्स स्ट्रिंग सिंपल डेमो. ओके, और इसके अंदर हमारा होगा मेन फंक्शन. ओके, यहाँ पर भी हम इंपोर्ट करेंगे एक पैकेज को, इंपोर्ट java डॉट util डॉट स्टार. ओके, ये कमेंट्स में निकाल देता हूँ. मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक चाहिए स्ट्रिंग str, और मुझे चाहिए स्कैनर क्लास, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इनटू ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन. ओके, ये दो चीजें मुझे चाहिए, बाकी फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए. आर यू क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी नो प्रॉब्लम.
ये थोड़ा सा शॉर्टकट में लेता हूँ, एंटर स्ट्रिंग, ओके लिया है हमने। नाउ आई एम ओपनिंग दिस वन, और यहाँ पर हम डालेंगे जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। ओके, नाउ देयर इज वन फंक्शन कॉल्ड एज कैरेट, या फिर हम उसको बोलेंगे कि वन सेकेंड। सो बहुत अलग अलग तरीके से हम इसको कर सकते। देखो ये कैरेट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आई विल बी ओनली गिविंग यू क्लूज, आई विल बी ओनली गिविंग यू क्लूज कि हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते। यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक। देयर इज वन फंक्शन कॉल्ड एज अ लेंथ, देयर इज वन फंक्शन कॉल्ड एज अ लेंथ, इसको आप यूज कर सकते हैं। देयर इज वन फंक्शन कॉल्ड एज अ कैरेट, जिससे आप कैरेक्टर के लोकेशन में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है एग्जैक्टली। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं एक्सेप्ट करने के बाद what I will do is that I will be using the loop that is for int I is equal to 0. Okay, I is less than str dot length leng. Okay, and I plus plus. Okay, and into this I will be displaying separate character. तो एक सेपरेट कैरेक्टर में किस तरीके से दिखाऊंगा, आई विल बी यूजिंग दिस str, ओके, एंड उसको स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर मैं वो आई को डाल देता हूँ। सॉरी, सो str डॉट char at एंड कैर एट इंडेक्स नंबर आई को हम डाल देंगे, जिससे हम ये दो फंक्शन से हम उसकी लेंथ और हर एक कैरेक्टर की विड्थ को हम ले सकते हैं। अभी ये लॉजिक आपको खुद यूज करना है, हाउ टू रिवर्स इट। ओके, सो आई एम जस्ट रनिंग इट। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक छोटा सा लॉजिक मेरा हिसाब से मैंने ऐसा लगा है कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम, इफ आई एम एंटरिंग लाइक दिस, सपोज IBMRD, ओके, एंड आई एम पुटिंग इट, यू विल फाइंड आई एम सेपरेटिंग IBMR and D. Are you getting? Yes or no? आया सबको समझ में? यस सर। ओके, अभी मैं प्रिंट एलन की जगह पर सिर्फ प्रिंट लिख देता हूँ। ओके, ओनली प्रिंट लिख देता हूँ, एंड आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम नाउ अगेन, एंड आई एम पुटिंग अगेन IBMRD, and I'm pressing. See this, I'm getting on a same line. आया समझ में? यस सर। ओके, प्रिंट एलन मतलब नेक्स्ट लाइन, प्रिंट मतलब उसी जगह पर। अभी मुझे उसको उल्टा करना है। ओके, वही लॉजिक करना है। तो यहाँ पर कहाँ से चालू करना पड़ेगा और कहाँ तक जाना पड़ेगा? नाउ आई मीन कॉल्ड इज जे मतलब क्या? स्ट्रिंग डॉट लेंथ को जाओ, यहां से चालू करो। कहां तक जाना है? जब तक कंडीशन 0 से ज्यादा है। आर यू गेटिंग? व्हेन j इज ग्रेटर देन 0, j माइनस माइनस। ओके, एंड आई एम डिस्प्लेइंग दिस j over here. So system.out.println reverse string, and this is system.out.println I will call as original string. Okay, I am saving the code, I am formatting it, right click, source, format. Okay, and now I am running it.
देखो यहाँ पर मैंने फॉर लूप 0 से भगाया था, लास्ट कहाँ पर तक लिया था, उसकी लेंथ तक लिया था। किसकी लेंथ की? स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग में डालूंगा कितनी बड़ी डालूँ उसकी लेंथ एंड तक जाएगा, और वो स्ट्रिंग को हर एक चीज़ को, हर एक कैरेक्टर को वो आइडेंटिफाई करेगा एट द कैरेट फंक्शन से, और उस कैरेक्टर को वो दिखाएगा बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट आउट। अभी हमें वही काम करना है उल्टा, ऐसा, यानी एंड तक जाना है और कम होते होते 0 तक आना है इंडेक्स नंबर, और हर बार हम माइनस करेंगे एंड वी विल बी डिस्प्लेइंग दैट कैरेक्टर। लेट अस सी द आउटपुट। ओके, so let us go for running the program and see the output now. I am entering IBMRD, I am pressing enter. See, there is an error. What is it? Index, string index out of bound, line number 18। मतलब क्या, हमें यहाँ पर एरर हमारा कहाँ पर आ चुका है? This should be -1। Let us see now. It is IBMRD and see this, sorry, it should be 0 से लेकर 1 तक, and println से println। okay, IBMRD reverse string -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था, मेरा वो गलत हो गया था। इक्वल टू रह गया था ना। ओके, नाउ दिस इज आई एम गिविंग IBMRD एंड आई एम प्रेसिंग एंटर, सो इट इज रिवर्स। ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट पुटिंग /n, तो ये हमें आउटपुट परफेक्ट दिखा देगा। स्लैश, सो सिस्टम डॉट /n। ओके, या फिर यहाँ पर भी डाला तो भी चलता है स्लैश, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग दिस। So running the code, I am putting IBMRD, the output will be like this, DRMBI। ओरिजिनल था ये, रिवर्स ऐसा। आर यू गेटिंग? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now here I have not using any string class, nothing I have used, not a string buffer, not a string ये हमें बेसिक लॉजिक का यूज़ करके, लेंथ फंक्शन को, कैरेट फंक्शन का यूज़ करके हमने उसी स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखा दिया आपको। ओके, नाउ ऑन सेम पैरामीटर असाइनमेंट नंबर 73 से लेकर आपको वही प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है पैलिंड्रोम में विदाउट स्ट्रिंग बफर, जो मैंने सुबह सिखाया था ना आपको, अभी पहले वाला, वो अभी नहीं करना, रिवर्स करना है। पैलिंड्रोम को भी आप ही खुद करो, अभी वो पैलिंड्रोम है क्या नहीं, बट यहाँ पर आपको स्ट्रिंग बफर को यूज नहीं करना, आप आपका लॉजिक लगाओ एंड यू जस्ट चेक इट वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। देन नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड चेक वेदर द स्ट्रिंग इज कंटेनिंग। उस स्ट्रिंग में अगर मैंने ऐसा कोई स्ट्रिंग बोला कोई बंदे को कि यू प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग, एंड इफ द पर्सन एंटर्स लाइक दिस, लाइक IBMRD@, नगर NAGAR, ये पूरी स्ट्रिंग डाल दी। ये पूरे स्ट्रिंग में अगर कहाँ पर भी आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर दिखाई देता है तो इमीडिएटली यू हैव टू से दैट राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग एंड चेक वेदर द स्ट्रिंग इज कंटेनिंग अ स्पेशल कैरेक्टर और नॉट। सो आपको आउटपुट में बताना है कि स्ट्रिंग कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर। ओके, अगर उसने डाल दिया सिर्फ IBMRD NAGAR तो इट शुड से स्ट्रिंग डोंट कंटेंट। ओके, डू नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। आर यू गेटिंग? यस और नो? Yes, sir. ओके, इसको भी आप यही लॉजिक यूज करना Yes, है। sir. यू कैन यूज द सेम लॉजिक जो हमने ये यूज किया था, इससे ही आप ये प्रोग्राम को कर सकते हो। यू ट्राई इट। ओके, देन उसके बाद आप ये प्रोग्राम को ट्राई करो। ये वाले प्रोग्राम थोड़ा टफ है, ये मैं खुद ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जरा थोड़ा टफ है, दैट आई विल बी कंडक्टिंग, दैट इज ये ईमेल आईडी को चेक करना है आपको
कि उसके अंदर ए कितने बार है, डॉट कितने बार है, इंडेक्स वैल्यू पे क्या है, दैट आई विल बी डूइंग. नंबर का भी मैं लेता हूँ जहाँ तक हो सके. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड. रिमेनिंग इज वेरी सिंपल. आई थिंक एवरीवन विल कंप्लीट मेजरली ऑल एग्जाम्पल्स. यस और नो? यस और नो? हो जाएगा कि नहीं कंप्लीट सबका? वुड यू ट्राई और नॉट? ट्राई करेंगे कि नहीं? 73. Yes, sir. ट्राई करेंगे सर. Yes, you try it. Yes, sir. If you find any doubts, if you found any problem, you just bring under me. Sir, मेरे को हमको ये 75 वाला करके दिखाओ, 76. You just tell me. I will be giving you solution live. Okay. But what I am expecting is that you all should try. जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता. No one will help you. Okay. Now the problem is with you. The problem statements are with you. You try from 73 onwards. जो आ रहे वो मेरा, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द नंबर्स. ये कौन से नंबर पे जो आपके आ रहे, रन हो रहे, गेटिंग एन आउटपुट, आई यू आर सेटिस्फाइड, राइट इट इनटू नोटबुक. ये वाला आ रहा है, राइट इट इनटू नोटबुक. ये वाला नहीं आ रहा है, छोड़ दो. मूव टू द नेक्स्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट वन. जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है हम मुझे बता दो. आई विल ब्रिंग अंडर माई कंसिडरेशन. आई विल इमीडिएटली गिव अ सोल्यूशन फॉर यू. हम विल गो फॉर लाइव प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स ओनली. ओके. तो जो सिंपल है उसको आप ट्राई करो. जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको ये लॉजिक डेवलप हो ही नहीं सकता. ओके. सो आर यू क्लियर विद दिस एवरीवन? Yes, sir. नो डाउट्स? नो क्वेश्चन? ओके. आई विल बी शेयरिंग द वीडियो. ये वीडियो भी मैं ऐसे अपलोड कर देता हूँ एंड दिस विल बी अवेलेबल टू यू इमीडिएटली. ओके, विद इन 5-10 मिनट्स.